انجینئرز نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر دنیا کے سب سے اونچے برج پلرز کھڑے کر دیے تھے، لیکن اب ان کو آپس میں کنیکٹ کرنے کا معاملہ ان کے گلے پڑ چکا تھا۔ فرانس میں دنیا کے سب سے اونچے ملاؤ وائیڈکٹ برج کی کنسٹرکشن کے دوران انجینئرز اب ایک بڑے مسئلے میں پھنس چکے تھے۔ اب ان کے اوپر بنے بنائے روڈ سیکشنز رکھنے تھے۔ دو پلرز کے درمیان رکھے جانے والے ایک روڈ سیکشن کا وزن ہی لگ بھگ 25 لوکوموٹیو انجنز کے برابر تھا۔ ایسے ٹوٹل 8 سیکشنز تھے۔ دنیا میں کوئی ایسی کرین ہی نہیں تھی جو 5000 ٹن وزن کو 800 فیٹ کی اونچائی تک اٹھا سکیں۔ دو پلرز کے اوپر اگر کرینز کو لگا کر سیکشنز کو کھینچا گیا تو پلرز اونچے ہونے کی وجہ سے اندر کی طرف آسانی سے کولیپس کر جائیں گے۔ جتنا اونچا پلر ہوگا اس کا ٹاپ اتنا ہی زیادہ کمزور ہوگا۔ اب اتنا بڑا مسئلہ کنسٹرکشن ٹیم کے لیے کسی ڈراؤنے خواب سے کم نہیں تھا۔ اس مسئلے کو لے کر ملاؤ وائیڈکٹ برج کی کنسٹرکشن میں ڈیلے آ رہا تھا اور ہر گزرتے دن کے ساتھ کنسٹرکشن کمپنی کو روزانہ $30,000 کا فائن لگ رہا تھا۔ دوستو، فرانس میں موجود ملاؤ وائیڈکٹ برج دنیا کا سب سے اونچا برج ہے، جس کو سال 2004 میں 394 ملین یوروز کی لاگت سے تیار کیا گیا تھا۔ یہ زمین سے 1125 فیٹ کی اونچائی پر کھڑا انجینئرنگ کا ایک عجوبہ ہے۔ آئیفل ٹاور سے بھی 45 فیٹ اونچا یہ برج اتنی اونچائی پر ہے کہ اکثر یہ بادلوں کے بیچ تیرتا ہوا نظر آتا ہے۔ انجینئرنگ کمپنی جس نے اس برج کو بنانے کی ہمت دکھائی تھی وہ اصل میں اس پروجیکٹ کو لے کر پھنس چکے تھے۔ فرانس کی ان وادیوں میں لینڈ سلائیڈز اور 130 کلومیٹر پر آور کی رفتار سے چلنے والی تیز ہوائیں ان کے کام کو مشکل سے ناممکن کی طرف دھکیل رہی تھیں۔ اتنا اونچا 4 لین ہائی وے نہ تو پہلے کبھی بنایا گیا تھا، نہ آج تک کسی نے بنانے کی ہمت کی ہے، کیونکہ سبھی جانتے ہیں کہ ملاؤ وائیڈکٹ نے انجینئرنگ کی لیمٹس کو صرف کراس ہی نہیں بلکہ جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ دوسری طرف اس برج کو بنانا فرینچ گورنمنٹ کی مجبوری بن چکی تھی۔ 1980s میں فرینچ گورنمنٹ فرانس سے اسپین جانے والے ٹورسٹ سے بہت زیادہ پریشان تھی، خاص طور پر ہالیڈے سیزنز میں یہ ٹریفک تمام شہروں سے ہو کر گزرتا تھا اور ہر شہر کی سڑکیں جیم کرتا ہوا گزرتا تھا، خاص طور پر یہاں کی سٹی ملاؤ کو۔ یہ شہر 1500 فیٹ کی گہرائی میں پہاڑوں میں موجود ہے۔ ناردرن فرانس سے آنے والے ٹریفک کو پہلے زگ زیگ روڈ سے نیچے اترنا پڑتا تھا اور پھر دوبارہ سے اوپر چڑھنا پڑتا تھا۔ ایک تو اس زگ زیگ سفر میں گھنٹوں لگ جاتے اور اوپر سے ملاؤ سٹی کے ٹریفک جام میں کم سے کم 6 گھنٹے الگ سے ضائع ہوتے تھے۔ لہٰذا ٹورسٹ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے فرینچ گورنمنٹ نے پیرس سے اسپین تک موٹر وے بنانے کا فیصلہ کیا۔ اب پیرس سے ملاؤ تک تو موٹر وے بالکل سیدھا بن سکتا تھا، لیکن ملاؤ سٹی میں ایک ڈیڈ اینڈ تھا، 1500 فیٹ سے زیادہ اونچے پہاڑ اور ان کے بیچ گزرنے والی ٹارن ریور۔ اس کمپلیکیٹڈ کنڈیشن کو بائی پاس کرنے کا ایک ہی طریقہ تھا کہ لگ بھگ یہاں پہ پہاڑ کی اونچائی جتنا ہی برج بنایا جا سکے، لیکن یہ بولنا تو آسان تھا لیکن کرنا لگ بھگ ناممکن، کیونکہ 1980s میں جب یہ پلان بنایا جا رہا تھا اس وقت دنیا کا سب سے اونچا ترین برج کیلیفورنیا کا گولڈن گیٹ برج تھا۔ ایک تو یہ سسپینشن برج تھا اور دوسرا پانی سے لے کر روڈ کی ہائٹ صرف 250 فیٹ کی تھی، یعنی کہ ملاؤ کے پہاڑوں سے 6 ٹائم کم۔ یہ دیکھتے ہوئے کئی ایکسپرٹس نے کہا کہ ملاؤ پہ برج نہیں بنایا جا سکتا، اور اگر ایسا برج بنایا بھی کیا تو یہ ایک بہت بڑے حادثے کو دعوت دینے جیسا ہوگا۔ کئی سالوں تک یہ برج بنانے کا خواب بن کر ہی رہا، لیکن آخرکار جب ٹریفک جام حد سے زیادہ بڑھ گئی، فرینچ گورنمنٹ کے پاس یہ کڑوا گھونٹ پینے کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن نہیں تھا۔ اب یہاں پہ ڈیزائن سے لے کر کنسٹرکشن تک برج انجینئرنگ ٹیم کو 3 مشکل ترین چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا۔ پہلا، دنیا کے سب سے اونچے ترین برج پلرز کھڑے کرنا، اور وہ بھی پہاڑوں کی سلوپ پر۔ دوسرا، اس کے اوپر 36,000 ٹن وزنی 4 لین ہائی وے کو رکھنا۔ تیسرا، اس برج کے اوپر سٹیل پائلونز کو کھڑا کرنا، ایک سٹیل پائلون ایئر بس A380 سے بھی 2 ٹائم وزنی، اور سب سے بڑھ کر انہیں یہ ٹاسک زمین سے کئی 100 فیٹ کی اونچائی پر کرنے تھے۔ اس کام کے لیے دنیا کے بیسٹ آرکیٹیکٹ لارڈ نارمن فوسٹر کو ہائر کیا گیا۔ یہ بریجز کی ڈیزائننگ میں پہلے ہی دنیا میں اپنا نام بنا چکے تھے۔ ان کا کام ایک ایسے برج کو ڈیزائن کرنا تھا جس کی نزاکت تتلی جیسی ہو، لیکن یہ تتلی ہزاروں ٹن وزن تیز ہواؤں میں بھی جھیل سکے۔ اس ڈیزائن میں چھوٹی سی بھی غلطی کسی بڑی آفت کا باعث بن سکتی ہے۔ 2 سالوں بعد نارمن فوسٹر کا ڈیزائن ابھی ڈرائنگ بورڈ پر ہی تھا کہ ان کی ریپوٹیشن کو ایک بڑا جھٹکا لگ گیا۔ کچھ سالوں پہلے انہوں نے لندن کا ملینیم فٹ برج بھی ڈیزائن کیا تھا۔ سال 2000 میں جب اس برج کو لوگوں کے لیے کھولا گیا تو صرف انسانوں کے چلنے سے ہی یہ برج بری طرح سے جھولنے لگا۔ اس کے ڈیزائن میں ایک بہت ہی بڑا
बड़ा लेकिन छुपा हुआ नुक्स था, जिसकी वजह से इस ब्रिज को 1.5 सालों तक के लिए बंद करना पड़ा। इसकी रिपेयर में एक्स्ट्रा 50 लाख पाउंड लग गए थे। अगर ऐसा ही डिजाइन फॉल्ट मिलेनियम ब्रिज से 15 टाइम्स ज्यादा ऊंचे मिलाओ वायरडक्ट ब्रिज में निकला तो तबाही का अंदाजा लगाना भी मुश्किल होगा। सालों की मेहनत के बाद फोस्टर एक शानदार डिजाइन पेश कर चुके थे। ब्रिज के टोटल 7 पिलर्स डिजाइन किए गए और इसके ऊपर रोड कर्व शेप में होगा, पर मसला ये था कि पिलर नंबर 2 की हाइट सबसे ज्यादा होगी, जबकि बाकी 6 पिलर्स स्लोप पर बनेंगे। मसला सिर्फ इस अनोखे डिजाइन को पेपर से निकालकर हकीकत में बदलना ही नहीं था, बल्कि इंस्ट्रक्शन टीम जिसने इस ब्रिज को बनाने की हिम्मत की थी, उसे सिर्फ 4 सालों की रेड लाइन दी गई। रेड लाइन के बाद हर एक दिन का फाइन $30,000 तय पाया था, यानी कि करीब 25 लाख हर रोज का जुर्माना। अक्टूबर 2001 में मिलाओ वायरडक्ट ब्रिज का काम शुरू हो गया और ये ब्रिज 120 सालों के लिए बनाया जा रहा था। कंस्ट्रक्शन की शुरुआत पिलर्स की फाउंडेशन डालने से हुई, लेकिन उठते साथ ही जियोलॉजिस्ट की तरफ से एक बुरी खबर आन पहुंची। उन्होंने खबरदार किया कि इस एरिया के नीचे फ्रैक्चर्ड लाइमस्टोन है, जिसकी वजह से पत्थरों के बीच काफी खाली जगहें मौजूद हैं। इन कैविटीज में केव्स बनी हैं, जहां पे बैक्टीरिया की एक यूनिक किस्म रहती है। ये ब्लू मोल्ड नामी बैक्टीरिया दुनिया की सबसे मशहूर रॉकफोर्ट चीज बनाने के काम आते हैं, पर जो चीज के लिए सबसे परफेक्ट है वो दुनिया के सबसे ऊंचे ब्रिज की फाउंडेशन बनाने के लिए नहीं। जियोलॉजिस्ट ने यहाँ पे ड्रिलिंग और खुदाई के दौरान लैंडस्लाइड्स का खतरा जाहिर किया। इन तमाम वार्निंग्स के बावजूद फाउंडेशन बनाने का काम जारी रखा गया, लेकिन फिर वही हुआ जिसका डर था। मिलाओ वायरडक्ट की कंस्ट्रक्शन में एक ड्रामेटिक चेंज आ गया, जो कि था एक खतरनाक लैंडस्लाइड। इस लैंडस्लाइड ने पहले पिलर की फाउंडेशन को पत्थरों से ढक दिया, लेकिन खुशकिस्मती से कोई भी नुकसान नहीं हुआ। कंस्ट्रक्शन टीम ने ढलान को सीमेंट से स्टेबलाइज किया और प्रोजेक्ट को जारी रखा। ब्रिज के 7 बड़े बड़े पिलर्स बनाने के लिए करीब 2 मिलियन टन कंक्रीट की जरूरत थी, जिस वजह से साइट पर ही एक फैक्ट्री बनाई गई। ये ऐसा कंक्रीट था जिसमें 16,000 टन स्टील बार्स यूज होनी थी। अगर मिलाओ वायरडक्ट में इस्तेमाल होने वाले सरिये को सीधा बिछा दिया जाए तो ये 4000 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर कर सकता है, यानी कि दुबई से लेकर चाइना तक। आर्किटेक्ट का डिजाइन कंस्ट्रक्शन टीम के गले पड़ चुका था। इस पॉइंट पे उन्हें ये ख्याल आया कि कहीं उन्होंने ये प्रोजेक्ट लेकर गलती तो नहीं की। मसला ये था कि पिलर की शेप यूनिफॉर्म नहीं थी, यानी एक जैसी नहीं थी। ये नीचे से मोटे और ऊपर से पतले थे। एक टाइम पे सिर्फ 4 मीटर के सेक्शन पिलर को बनाया जाता, स्टील के भारी फ्रेम से डाई बनाई जाती और फिर उसमें कंक्रीट डाला जाता, और फिर अगले 4 मीटर पे डाई उतारी जाती और फिर दूसरी शेप की डाई चढ़ाई जाती थी। 15,000 टन वजनी इस डाई को बार बार उतारने से काफी टाइम जाया हो रहा था। ये दौड़ वक्त के खिलाफ थी। पिलर्स की कास्टिंग को जितना टाइम दिया गया था, असल में उससे 6 महीने ज्यादा लग चुके थे। पर इंजीनियरिंग टीम के मसले सिर्फ यही नहीं थे। एक एक पिलर की लोकेशन अगर पिन पॉइंट पे ना हुई तो उसके ऊपर रखा जाने वाला रोड सेक्शन कभी भी सीधा नहीं होगा। पिलर का बॉटम अगर 10 सेंटीमीटर से भी हटकर बनाया गया तो टॉप पर ये 6 मीटर का डिस्टेंस पैदा करेगा। इस पिन पॉइंट एक्यूरेसी के लिए जीपीएस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया गया। आसमान में मौजूद मल्टीपल सैटेलाइट की मदद से पिलर्स की पिन पॉइंट एक्यूरेसी पता करके वहीं बुनियाद डाली गई, और पिलर की कास्टिंग के दौरान भी जीपीएस सैटेलाइट का इस्तेमाल किया गया ताकि पिलर का टॉप वहीं हो जहां पे उसको होना चाहिए। दिन गुजरते गए, फिर महीने और फिर साल। नवंबर 2003 में 7 पिलर्स अपनी फाइनल ऊंचाई तक पहुंच चुके थे। 245 मीटर ऊंचा पिलर नंबर 2 दुनिया का सबसे ऊंचा पिलर हो चुका था, लेकिन इस कामयाबी के बाद उनको रिलैक्स करने का टाइम नहीं मिला, क्योंकि ब्रिज कंस्ट्रक्शन का अगला मरहला सबसे मुश्किल था। इतनी ऊंचाई पर 2.5 किलोमीटर लंबा रोड सेक्शन बिठाना कोई मजाक का खेल नहीं था। इस पूरे रोड सेक्शन का वजन करीब 36,000 टन था, और ये वजन 90 एयरबस A380 जितना बनता है। इस प्रोसेस के दौरान एक छोटी सी भी गलती इंसानी जान और करोड़ों डॉलर्स का नुकसान कर सकती है। आपको बताते चलें कि न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन ब्रिज पर 34 वर्कर्स की जान गई थी, और 1970s में भी ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट गेट ब्रिज पर भी 35 से ज्यादा वर्कर अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। इतिहास के इन नुकसानात को मद्देनजर रखते हुए मिलाओ वायडक्ट पे रोड को स्टील के पोर्शंस में बनाने का फैसला किया गया, और इस काम के लिए कई 100 किलोमीटर दूर आईफल स्टील वर्क्स की मदद ली गई। ये उस वक्त वाहद एक ऐसी कंपनी थी जो
जो स्टील के इतने बड़े सेक्शंस बनाने की काबिलियत रखती थी। रोड के लिए 2200 बड़े बड़े स्टील के सेक्शंस बनाए गए और वो भी अलग अलग डिजाइन्स के। एक एक सेक्शन का वजन 90 टन था और इनको इतनी ज्यादा एक्यूरेसी के साथ बनाया गया कि एक बाल जितना भी डिफरेंस ना आने पाए। कटिंग और वेल्डिंग का काम तो मुश्किल था ही, लेकिन एक और बड़ा चैलेंज इनको कई 100 किलोमीटर दूर कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचाने का था। रूट्स प्लान किए गए और पुलिस को ऑन बोर्ड लिया गया और एक एक करके रोड सेक्शंस रवाना किए गए। इन तमाम रोड सेक्शंस को कंस्ट्रक्शन साइट पर हिफाजत से पहुंचाने के लिए टोटल 2000 से ज्यादा कॉन्वॉय लगे थे। प्लान ये था कि इन तमाम स्टील सेक्शंस को वेल्ड करके इनको पिलर्स के ऊपर स्लाइड करके आगे धकेला जाएगा, जैसा कि नॉर्मल ब्रिजेस की कंस्ट्रक्शंस में होता है। लेकिन ये ब्रिज किसी भी तरह से नॉर्मल नहीं होने वाला था। करीब 250 मीटर ऊंचे पिलर्स के दरमियान 342 मीटर का फासला है। अगर 5 टन वजनी सेक्शन को स्लाइड करवाया गया तो जब तक वो एक पिलर से दूसरे पिलर तक पहुंचेगा तो उसके बीच में ही सपोर्ट ना होने की वजह से सेक्शन नीचे भी गिर सकता है। अगर नीचे ना भी गिरे तो इतने ऊंचे पिलर्स पर रोड सेक्शंस को स्लाइड करवाने से पिलर्स एक एक करके नीचे गिर जाएंगे। अब ये मसला कंस्ट्रक्शन टीम के गले पड़ चुका था। इस तरह के ब्रिज को बिल्ड करने के लिए कोई नया तरीका इन्वेंट करने की जरूरत थी। यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन टीम के इंजीनियर को एक आइडिया आया। उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाया कि अगर एक कमजोर टेबल के ऊपर भारी चीज रख दी जाए और उसको जमीन पर खड़े होकर धक्का दिया जाए तो पूरी टेबल साथ ही मूव करेगी। लेकिन अगर उसी बॉक्स को टेबल के ऊपर चढ़कर पुश किया जाए तो फिर टेबल को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिजिक्स के इसी कानून की मदद लेते हुए ये फैसला लिया गया, मिलाऊ वायडक्ट के पिलर्स के ऊपर ऐसा सिस्टम लगाया जाए जो कि रोड सेक्शन को उठाकर आगे पुश करें। इससे पहाड़ की तरफ से लगाया जाने वाला जोर सिर्फ पिलर्स पर ही नहीं पड़ेगा। इस काम के लिए पिलर्स के दरमियान 170 मीटर के फासले पर टेम्परेरी स्टील स्ट्रक्चर भी खड़े किए गए जो कि रोड सेक्शंस के आधे वजन को बर्दाश्त करेंगे। ये नया सिस्टम एक तरह का प्रोटोटाइप था और उसको टेस्ट करने का भी टाइम नहीं था। अब दुनिया के सबसे ऊंचे ब्रिज का फ्यूचर सिर्फ एक प्रोटोटाइप पे लटका हुआ था। 26 फरवरी 2003 का वो दिन कंस्ट्रक्शन टीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। आज इनकी सालों की मेहनत को एक ही दिन में टेस्ट किया जाना था। पिलर्स और रोड सेक्शंस की मजबूती और पिलर्स के ऊपर लगाया गया हाइड्रोलिक रैंप सिस्टम, इस नए सिस्टम के तमाम रैंप को एक ही साथ एक ही स्पीड में रोड सेक्शंस को उठाकर आगे की तरफ पुश करना था। अगर इनकी सिंक्रोनाइजेशन में थोड़ा सा भी फर्क आ गया तो सारा वजन किसी एक पिलर पर ही पड़ेगा और इससे पूरा ब्रिज कोलैप्स भी हो सकता है। खुशकिस्मती से हाइड्रोलिक रैंप सिस्टम काम कर गया और पूरे 2 दिन लगाकर सिर्फ 200 मीटर के रोड सेक्शन को लगाकर पिलर नंबर 1 तक पहुंचा दिया गया। ये सारा काम मौसम देखकर किया जा रहा था। सिर्फ उन 3 दिनों को सिलेक्ट किया जाता जब तेज हवाओं के चलने का कोई चांस नहीं था। इसकी वजह सिंपल है, तेज हवाएं ब्रिज को गिरा सकती हैं, खास तौर पर जब रोड सेक्शन की एक साइड हवा में बगैर किसी सपोर्ट के लटक रही हो। 1940s में वाशिंगटन में टकोमा नेहरू सस्पेंशन ब्रिज के पिलर्स हवा को रोक रहे थे और उसके नतीजे में पूरा ब्रिज झूलने लगा। अपने लॉन्च के सिर्फ कुछ दिनों बाद पूरा ब्रिज टूटकर पानी में गिर गया। दिन गुजरते गए, रोड सेक्शंस को पिलर्स के ऊपर रखने का काम जोरों शोरों से जारी रहा। मई 2004 तक दोनों साइड से रोड सेक्शंस बिछाए जा चुके थे। अब बचा था सिर्फ रिवर के ऊपर वाला पार्ट। अगर ये आखिरी सेक्शन ठीक से नहीं बैठा तो सारी मेहनत जैसे 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसी सेक्शन में रोड कर्व भी हो रहा है, इसलिए इसका पिन पॉइंट जगह पे बैठना बेहद जरूरी है। इस मूवमेंट को पूरा फ्रांस लाइव ब्रॉडकास्ट में देख रहा था, जबकि फ्रेंच प्राइम मिनिस्टर खुद मौका पर मौजूद थे। हाइड्रोलिक रैंप का आखिरी बार बटन दबाया गया। 4 सालों में पहली बार नॉर्थ और साउथ सेक्शंस आपस में मिल चुके थे और वो भी पूरे 99.9% एक्यूरेसी के साथ। रोड कनेक्ट होने के बाद एक्स्ट्रा सपोर्ट के लिए 90 मीटर ऊंचे स्टील पाइलॉन्स को भी लगाना था। एक पाइलॉन 700 टन वजनी और ऐसे पूरे 7 पाइलॉन्स थे। इतनी ऊंचाई पर इतने भारी पाइलॉन्स को लगाना दुनिया में पहली बार अटेम्प्ट किया जा रहा था। लाउ वायडक्ट के सिर्फ रोड का वजन 40,000 टन है। इसके बाद इसके ऊपर डांबर का रोड बिछाया गया जिसने 10,000 टन की एडिशन करके रोड का टोटल वेट 5,000 टन कर दिया। अंदाजे के लिए आपको बताते चलें कि ये वजन 1200 बैटल टैंक के वजन बराबर बनता है या फिर एक बड़ी क्रूज शिप जितना। इसकी मजबूती चेक करने के लिए इस पर एक साथ 28 ट्रक चलाए गए। हैरानी की बात है कि जो रोड सेक्शन 50 सेंटीमीटर झूलने तक बनाया गया था वो इन तमाम ट्रक्स के वजन से सिर्फ 25 सेंटीमीटर तक ही झूला था। 16 दिसंबर 2004 को मिलाओ वायाडक्ट ब्रिज पब्लिक के लिए खोला गया। ये इंजीनियरिंग
इंजीनियरिंग टीम की दिन रात के खून पसीने की मेहनत का नतीजा था, जिन्होंने न सिर्फ कामयाबी से दुनिया के सबसे ऊंचे ब्रिज की कंस्ट्रक्शन की, बल्कि टाइम से पहले अपना काम मुकम्मल करके एक नया रिकॉर्ड बना दिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। गुड बाय।